Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing extremely well. So today in this video we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is geek and number string, right? So as usual, first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be coding it up. But guys, before proceeding further, make sure to subscribe my channel if you haven't done so. It will really motivate me to create more such content for you, and I believe the channel is going to be helpful for you. So make sure to subscribe, turn on the bell icon too, so that whenever we are uploading any video you can get the notification for the same. And don't forget to join our Telegram community too. The link for the Telegram channel is given in the description itself. So what are we waiting for? Let's get started with the problem statement now. So the problem says geek has a string s of size n consisting of characters from 0 to 9. He wants to minimize the length of the string. In each minimizing operation, geek can remove any two consecutive character if they are of the form 1 2 2 1 3 4 43 56 65 78 87 09 90. We have to find the minimum possible length of the string after applying minimizing operations. Okay, so that's what the problem is. हमारे पास एक string है, ठीक है, and that is having n characters, ठीक है. नाउ हमें क्या करना है? तो ठीक है, तो गीक है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को. वो कैसे मिनिमाइज कर सकता है कि गीक जो है ना वो कुछ कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है अगर वो इस फॉर्म में हो, मतलब इनमें से कोई हो, 12 21 34 लाइक दैट, राइट. तो इनमें से कोई हो तो वो उसको हटा सकता है. तो हमें बताना है कि कितनी लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग बचेगी जब गीक ये जो मिनिमाइजिंग ऑपरेशन है वो कर लेगा. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन. एक बार एग्जांपल से और समझ लेते हैं. तो हियर वी हैव n इक्वल टू 5 and s इक्वल टू 1 2 2 1 3 and the output for the same that we are getting is 1. Let's understand how. Now if you will see right here 1 2 1 2 and that is there, right? This 1 2 we do have this characters of two consecutive character 1 2 we do have in this array or whatever you say, right? तो यहाँ से देखो ये हमारे पास मिल रहा है तो हम 1 2 को हटा सकते हैं. नेक्स्ट इज 21, ठीक है, 21 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब हम 21 को भी स्ट्रिंग से हटा सकते हैं. अब हमारे पास क्या बचा? 3 बचा. 3 तो यहाँ नहीं है तो 3 को नहीं हटा सकते हैं. तो कितने लेंथ की हमारी स्ट्रिंग बची? कितने लेंथ की स्ट्रिंग बची? 8, राइट. तो अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि दैट geek can remove geek can get a string of length 1 in two minimizing operation. दो ऑपरेशन में करेगा तो उसको एक लेंथ की स्ट्रिंग बचेगी. geek जो है 1 2 को हटा देगा एंड देन 2 1 3 बचेगा उसके पास, तो उसमें सेकेंड ऑपरेशन में geek 2 1 को हटा देगा. ठीक है, तो अब क्या बचा? 3. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 2 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास है 1350. तो 1350 अगर आप देखोगे तो इनमें से हम कोई कैरेक्टर नहीं रिमूव कर सकते हैं. तो लेंथ हमारे पास कितनी रहेगी? 4. So whatever task is that we have to complete the function min length which takes n and s as input parameters and return the minimum possible length of the string. ठीक है, तो expected time complexity and space complexity they have provided. So let's think about it how we can solve this problem. कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को? ठीक है, जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग दी गई है, अब हम स्ट्रिंग को ये अगर इसे पेयर अप कर रहे हैं, राइट, अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे पेयर अप कर रहे हैं तो हम हमको ये ढूंढना रहेगा ना कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो मैच कर रही है क्या पेयर अप करने पे हमारे स्ट्रिंग की जो भी हमारा फॉर्म हुआ है स्ट्रिंग. जैसे आपने 1 लिया फिर देन स्ट्रिंग में 2 ऐड किया तो हमें देखना रहेगा कि क्या ये 1 2 जो है वो हमारी गिवन वैल्यूज में है, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको कोड के साथ समझते हैं ना. इजी सा प्रॉब्लम है, एक बार कोड के साथ पैरेलल समझेंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा, राइट. आई होप आपको शो हो रहा होगा कोड. तो देखो पहले हमने क्या किया, आज कोड ना आज पाइथन में कर लिया है. ठीक है, आप कोई सी भी लैंग्वेज में कर सकते हो. ठीक है, अगर एक बार लॉजिक क्लियर आ जाता है तो आप कोई भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो वैल्यूज है हमारी जो भी हमें कंसिडर करनी है, तो वो हमने एक लिस्ट में स्टोर करा ली. ठीक है, ये हमारा st लिस्ट हो गया. ठीक है, कैसे आप करे होगे तो प्रॉब्लम में तो आप स्टैक ले लेना. ठीक है, तो अभी हम क्या करें, सबसे पहले हम ना बारी बारी से हम क्या करेंगे, जो हमारे कैरेक्टर्स है ना स्ट्रिंग के उसको पुट कराएंगे. पुट किस में कराएंगे? स्टैक में. अभी स्टैक के लिए हमने यहाँ पे देखो यहाँ लिस्ट ले लिया पाइथन में. ठीक है, तो हम देखो लूप करें फॉर आई इन रेंज n. नाउ
अभी अगर हमारे स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है तो हम स्टैक में वैल्यू डाल रहे हैं s(i). जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल लें पैरेलल में, तो 1 हमने इंसर्ट करा दिया अपने स्टैक में, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर पे, ठीक है। तो अभी तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, राइट, अभी हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एलिमेंट स्टैक के टॉप पर है, ठीक है, st-1 हम एक्सेस करें तो हमारे एलिमेंट जो हमने लास्ट में इंसर्ट कराया है, जो स्टैक के टॉप पर है, ठीक है, उसको ऐड कर दो। हमारी ये हमने यहाँ पे ये एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, राइट। तो 1 हमारा आ गया, एंड जो करेंट कैरेक्टर है वो भी ऐड कर दो। तो अब हमारे जो फॉर्म हो गई स्ट्रिंग, हमारी स्ट्रिंग जो फॉर्म हो गई वो क्या फॉर्म हो गई, 1 2, ठीक है, 1 2 हमारी स्ट्रिंग फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि अगर हमारा जो भी स्ट्रिंग फॉर्म हुई है, 1 2 जो हमारी स्ट्रिंग फॉर्म हुई है, अगर वो हमारी गिवन वैल्यूज में है, तो हम सिंपली यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि अगर जो हमारा टेम्प है जो हमने फॉर्म किया है, अगर टेम्प जो है हमारा वो इन गिवन वैल्यूज में है, अगर गिवन वैल्यूज में है तो हम क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हमने इंसर्ट कराया था ना स्टैक में, उसे हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसका कंट्रीब्यूशन देख लिया, राइट। हमें मिल गया, जो हम वैल्यू देखना चाहते हैं वो हमें मिल गई, तो हमने स्टैक से रिमूव करा दिया। तो स्टैक में अभी क्या डाला था, लास्ट 1 डाला था, राइट। तो 1 हमने वहां से रिमूव करा दिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर जो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म हुआ अगर वो हमारे वैल्यूज में नहीं, तो हम सिंपली उसे स्टैक में इंसर्ट करा दे रहे हैं। अभी तो ऐसा है, राइट। तो 1 2 तो है हमारे पास, तो हमने स्टैक में से 1 रिमूव करा दिया। अभी हमारा आई जो है वो ये 2 को पॉइंट कर रहा होगा, और अब देखो स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है तो स्टैक हमारा एम्प्टी होगा, उसका साइज 0 होगा। तो हमने स्टैक में डाल दिया अपना 2 डाल दिया, राइट। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आई अब 1 को पॉइंट कर रहा होगा, तो फिर से हम ये एल्स पार्ट में जाएंगे क्योंकि स्टैक जो हमारा एम्प्टी नहीं है। तो टेम्प में हम ऐड कर रहे होंगे जो एलिमेंट हमने लास्ट में डाला है स्टैक में 2, एंड देन करंट एलिमेंट है 1 तो 21 हमारी स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो अगेन हम देख रहे हैं कि अगर ये जो वैल्यू हमारी 21 आई अगर ये वेल में है तो स्टैक से वैल्यू को पॉप करा दो। तो स्टैक में हमने क्या डाला था, 2 डाला था, राइट। तो 2 को पॉप करा देंगे, राइट। तो इसी तरीके से हम करेंगे। अब देखो 3 को देखेंगे ना तो ये नहीं मिलेगा, तो हम इसको स्टैक में इंसर्ट करा देंगे, राइट। तो इस तरीके से चीजें हैं। आई होप कि प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो रहा होगा ना कि कैसे लॉजिक हमें लगाना है, ठीक है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आज का कोड मैंने पाइथन में कर लिया, ऑल्दो जावा में कोड करती हूँ, ठीक है। तो यही था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यही था लॉजिक, इजी सा प्रॉब्लम था, सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बेस पे था। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मेक श्योर to put this in the comment. I will definitely reply you, and also I have provided this code in the description in case you want to refer. Thank you so much for watching everyone. Bye bye.